you all on this platform of Scholarsphere. Now I'm starting the series for class 10th English on request of various students. Mm, and first part I'm starting the prose, or we can say we can read the chapter one by one as it is given in the book. And the basic requirement is you have your book in your hands. And yes, we are going to start this beautiful series to understand the English. And yes, we are going to start it. So the first chapter for English class 10th UP board is the A Letter to God. And I can do something. Yes, A Letter to God. Okay. The author, or the you can say author, or you can say writer of this chapter is G.L. Flunes. G.L. Funes. And this name is a must to remember for you, because there are a question of this type asking you the chapter name, or they give a paragraph in your exam and ask for the reference and context and chapter name or the writer name, both in the Hindi and English. In Hindi they call it prasang, and also the vyakhya of that given particular prasang, and they ask the kavi ka naam or lekhak ka naam, and in English same as author name or writer name or the poet name. So we are beginning with this chapter, A Letter to God, a very good chapter, and I think I am very closely related this chapter when after the 2020, when I started teaching this in our coaching classes. Yes, I think this is visible clearly. Yes. As the first, this is before you read, and it is not. I think it is not given in every book, but in the NCERT book you will get this. So it is written there. They say faith can move mountains. You must keep a pen and a page or a pencil to write the meaning on your book. Okay. So they say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. ऐसा पढ़ना चाहिए हमें. They say, this is a, you can say it as a phrase type word. They say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है कि विश्वास से पर्वत तक हिलाए जा सकते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि विश्वास से पर्वत भी डिग सकता है. But what should we put our faith in? परंतु, but means परंतु, what should we put our faith in? हमें अपना विश्वास, अपना दृढ़ विश्वास कहाँ लगाना चाहिए, या कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन. यही प्रश्न है दिस स्टोरी, जो कि यह कहानी डेलिकेटली मीन्स गंभीरता से या नाजुकता से. तो यही प्रश्न है जो यह कहानी गंभीरता से उठाती है. तो पहले दो लाइनों का अर्थ ये है कि ऐसा कहा जाता है कि विश्वास से पर्वत तक हिल सकते हैं,
लेकिन हमें अपना विश्वास कहाँ रखना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? और यही वह प्रश्न है जो यह कहानी गंभीरता से उठाती है या नाजुकता से उठाती है। आगे, लैंचो, I can change the color, I think, yes. लैंचो इज अ फार्मर। लैंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, ruined, ruined मीन्स बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। तो लेंचो इज अ फार्मर, इट मीन्स लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो कि एक पत्र लिखता है। टू गॉड, किसे लिखता है? ईश्वर को लिखता है। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स, उसकी फसल या उसके फसल, आर ruined, बर्बाद हो गए थे, बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 pesos, उसने पत्र लिखा था किसके लिए? 100 पेसोस की मांग करते हुए या उसके बारे में पूछते हुए। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी। दिस लाइन से दैट, आप ऐसा सोचिए कि इन प्रश्नों के उत्तर आपके क्या होंगे, या आप इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में क्या सोचते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और यह अनुमान लगाइए कि यह कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपको ये इस अध्याय को पढ़ने से पहले करना है। इट इज़ सेइंग दैट कि इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप ये सोचिए कि लेंचो एक किसान था जो कि ईश्वर को एक पत्र लिखता है उसकी फसल के बर्बाद हो जाने पर, क्या पूछते हुए? 100 पेसोस की सहायता के बारे में पूछते हुए। तो क्या लेंचो का लेटर ईश्वर तक पहुंचा? क्या ईश्वर ने उसे पैसे भेजे? आपके द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, इसके बारे में सोचने की बात करता है। एंड आफ्टर दिस वी रॉक एंड रोल टू द chapter, or I can say the paragraph. This is a material, you can say, which is given in the NCERT book for the purpose of extra information, to know what type of letter is, or how the money order sorry, how money order look like. These are the things. So yes, this is the first paragraph, and I can do it little bit. So I think yes, this is visible now, no problem. Okay, from here the paragraph of the chapter starts. And the house, वह घर, the house, वह घर, the only one, एक अकेला, only one इसका मतलब केवल एक है, only means होता है इकलौता। in the entire valley, entire माने होता है संपूर्ण, complete, total। valley refers to the घाटी, valley का meaning है घाटी। the house, the only one in the entire valley, वह घर जो कि पूरी घाटी में, इन द एंटायर वैली में पूरी घाटी में, द ओनली वन मीन्स अकेला था, वह घर जो कि पूरी घाटी में अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट, द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट इज गिवन हियर, यू कैन सी टॉप ऑफ अ हिल, इट मीन्स चोटी। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल मतलब होता है कि छोटी चोटी या कम ऊंचाई वाली चोटी। तो वह घर जो कि पूरी घाटी में इकलौता था, कहाँ स्थित था? सैट का अर्थ है स्थित होना।
स्थित था द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी छोटी पहाड़ी या निचली पहाड़ी के ऊपरी छोर पर, छोटी पहाड़ी के चोटी पर वह घर इकलौता पूरी घाटी में स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, क्या देख सकता था, द रिवर नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब है पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर का मतलब है उसमें फूलों का लगे होना। तो फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, यानी फूलों से लगे हुए या फूल लगे हुए पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज जो कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा, दैट ऑलवेज promised a good harvest, promised a good harvest, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे या एक अच्छी फसल का दावा करते थे। ओके, ऑलवेज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड मीन्स दावा करना या वादा करना। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour. This is an important meaning. The only thing, केवल एकमात्र चीज, the earth needed, जिसकी आवश्यकता थी, और किसको आवश्यकता थी, the earth यानी पृथ्वी को। तो एकमात्र चीज, the only thing, एकमात्र चीज, the earth needed was, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, और डाउनपॉर यानी एक मूसलाधार बारिश, डाउनपॉर मीन्स मूसलाधार यानी ठीक ठाक बारिश होना, एंड एट लीस्ट अ शावर, सॉरी, और एट लीस्ट अ शावर, या पानी की बौछार की या बारिश की बौछार की। एट लीस्ट refers to the कम से कम। So the meaning of this line is the only thing the earth needed was a downpour, एकमात्र चीज जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी was a downpour, एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। आगे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, लैंचो, सुबह के दौरान, लैंचो, who knew his field intimately, this word is also important, I am highlighting this, yes, intimately, who knew his fields intimately, intimately मतलब काफ़ी लगा हुआ, जुड़ा हुआ होना, या गंभीरता से जानना, या अच्छे तरीके से जानना। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को गहराई से जानता था, या जो कि अपने खेतों से जुड़ा हुआ था, हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। लैंचो, पूरी सुबह के दौरान लैंचो, जो कि अपने खेतों से जुड़ा हुआ था या खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, एल्स के बजाय, किसके बजाय, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी वो लैंचो, सुबह के दौरान लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देखा। टूवर्ड्स माने के ओर, सी माने देखना, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व। अर्थात सुबह के दौरान लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया बल्कि उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखा। एंड दिस इज द लाइन
which the Lancho is saying because it is written in the inverted comma. Now we are really going to get some water, woman. अब हम कुछ बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं. Woman is written in the last. He is referring this to his wife. तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि महिला या anything what he pronounced. Now we are really going to get some water. अब हम कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं या बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं. The woman, I am scrolling it up. I think visible everything. Yes. The woman, वह महिला, who was preparing supper. This is also I can say important meaning. सपर में होता है डिनर या रात का खाना, शाम का खाना तैयार करना. द वुमेन, वह महिला जो कि शाम का भोजन तैयार कर रही थी, कॉमा रिप्लाइड, जवाब देती है. क्या जवाब देती है? यस, हाँ. गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो. जब लंजो ने कहा कि अब हम कुछ बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उस पर जवाब देते हुए वह महिला जो खाना बना रही थी वो कहती है यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हम अवश्य बारिश प्राप्त करेंगे. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. इसका अर्थ है कि जो बड़े बच्चे हैं, नॉट बुजुर्ग बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, वे क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे थे. while, जबकि the smaller ones were playing near the house. Okay, sorry, no, I think yes. While the smaller ones were playing near the house. बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के करीब या घर के समीप खेल रहे थे. Until the woman called to them all. और वे तब तक काम करते थे या खेलते थे. This until possess I can say grammatical importance. इसका अपना अलग मीनिंग कह सकते हैं, आप बन सकता है पूरा उसमें. तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे. और वे तब तक खेलते थे या काम करते थे जब तक वह महिला उन सबको कॉल टू देम ऑल, उन सबको नहीं बुलाती थी. क्या कह के नहीं बुलाती थी? कम फॉर डिनर, शाम के भोजन के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील माने होता है भोजन, आपको याद रखना है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज, yes I can yes it is visible. I can try. No, it is not. It was during the meal that just as Lancho had predicted. तो it was during the meal that, यह भोजन के दौरान, मील माने भोजन, ड्यूरिंग माने के दौरान. It was during the meal that, यह भोजन के दौरान था कि just as Lancho had predicted, जैसा कि लैंचो ने पूर्वानुमान लगाया था. प्रेडिक्टेड मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, पूर्वाभास करना. ओके, जैसा कि लैंचो ने अनुमान लगाया था. क्या अनुमान लगाया था? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के विशाल पहाड़. कुड बी शीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई देते थे या दिख रहे थे. अप्रोचिंग मतलब होता है पास आना, कोई चीज़ किसी करीब आना. ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मतलब होता है भारी, विशाल, बड़ा. माउंटेन मीन्स पर्वत, क्लाउड्स मीन्स बादल.
and I think every meaning is clear there. Yes. Big drops of rain begin to fall. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, सॉरी, in the northeast, उत्तर पूर्व की दिशा में, huge mountains of cloud could be seen approaching. I can say, हाँ, बादलों के बड़े पहाड़, या बादलों के बड़े पहाड़ कहने का मतलब ढेर सारे बादल. तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा क्या थी? ताजी थी और मधुर थी. स्वीट मीन्स मधुर होना, मीठा होना. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन. द मैन यानी वह आदमी, दिस मीन्स द पर्सन और द फार्मर लैंचो. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन. वह आदमी बाहर गया अन्य किसी कारण के लिए नहीं. दैन का यहाँ कंपैरिजन है. दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वह आदमी बाहर गया अन्य किसी कारण के लिए नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर. हैव द प्लेजर का मतलब अनुभव करना. प्लेजर का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद. फीलिंग का मतलब होता है अनुभव. रेन का मतलब बारिश. बॉडी का मतलब शरीर पर. तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन. वह आदमी या लैंचो बाहर गया अन्य किसी कारण से नहीं, बल्कि वर्षा का अपने शरीर के ऊपर आनंद अनुभव करने के लिए. तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वर्षा का अपने शरीर पर आनंद अनुभव करने के लिए लैंचो बाहर गया. ओके. कॉमा के बाद क्या है? एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाया. अब चिल्लाया कई सेंस में हो सकता है. यहाँ पर दिख रहा है कि खुशी में ही चिल्लाया हो. वह चिल्लाया या आश्चर्यचकित होकर बोला. दीज आर, इसको आरंट आप पढ़ सकते हैं. आरंट. दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं. Yes, what I am saying that these aren't raindrops falling from the sky. ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं. Falling means गिरना. They are new coins. ये नए सिक्के हैं. The big drops यानी बड़ी बूंदें are 10 cent pieces. जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट के सिक्के हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5. और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं. एंड आफ्टर दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड and enjoy this course. Goodbye. Thank you for watching.